his essay, A Bachelor's Complaints about the behavior of married people, he writes that he is not offended by the quarrels between husband and wife, but what offends him is that they are too loving. He further writes, but what I complain of is that they carry this preference so undisguisedly, they perk it up in the faces of a single people so shamelessly, you cannot be in their company a moment without being made to feel by some indirect hint or open avowal that you are not the object of this preference. लैम ने कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बिहेवियर है दैट दे आर टू लविंग, वो उसे ऑफेंड करता है. बट वाई शुड दैट ऑफेंड हिम, लेकिन ये बात उसे ऑफेंड क्यों करती है? वो फर्दर इसका रीज़न बताता है दैट these married people carry this preference that they prefer each other and they carry this preference so undisguisedly कि बिना छिपाए वो इस प्रेफरेंस को कैरी करते हैं and they throw it up in the faces of single people. और हम जैसे सिंगल लोगों के सामने वो इतना इस चीज़ को दर्शाते हैं so shamelessly that a bachelor cannot be in their company a moment विदाउट बीइंग मेड टू फील, कि एक बैचलर उनकी कंपनी में एक क्षण भी नहीं रह सकता ये महसूस किए बिना. बाय सम इनडायरेक्ट हिंट, या तो कोई इनडायरेक्ट हिंट दे देंगे वो, या फिर ओपन एवोवल मीन्स फ्रेंकली डिक्लेयर कर देंगे दैट यू आर मीन्स ए बैचलर इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेफरेंस, कि एक बैचलर जो है वो इस प्रेफरेंस का हिस्सा नहीं है. Now there are some things which give no offense, while implied or taken for granted merely, but expressed there is much offense in them. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तब तक बुरी नहीं लगती जब हम उनको मान कर चलते हैं, but when they are expressed, जब उनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है then there is much offense in them. He wants to say that he is a bachelor and he knows this thing that he is not the part of this preference, but when this thing is expressed to him or to any bachelor then there is a much offense in this thing. वो ये कहना चाहता है कि एक अनमैरिड पर्सन को पता है कि वो इस तरह के प्रेफरेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बात उसे बुरी तब लगती है जब उसके सामने एक्सप्रेस कर दी जाती है. If a man were to accost the first homely featured or plain dressed young woman of his acquaintance, अगर एक व्यक्ति जो है if he has to accost means welcome greet, कि उसे एक बिल्कुल साधारण फीचर वाली और प्लेन ड्रेस्ड यंग वुमेन जो कि उसकी परिचित है उसको ग्रीट करना है and tell her bluntly, and if that person explains to that woman bluntly, clearly, that she was not handsome or rich enough for him and he could not marry her. और अगर वो ऐसी औरत को जो बिल्कुल साधारण दिख रही है और उसके सामने अगर वो ये कह देता है कि वो इतनी हैंडसम और इतनी रिच नहीं है कि वो उससे शादी कर सके, he would deserve to be kicked for his ill manners. तो इस तरह के बुरे व्यवहार के लिए उस मैन को वहाँ से निकाल दिया जाएगा. He deserved to be kicked. Yet no less is implied in the fact that having access and opportunity of putting the question to her, he has never yet thought fit to do it. But if having access and opportunity of putting the question to her, कि एक मैन जो है उसको अवसर भी मिल जाता है इस तरह का प्रश्न करने का उस लेडी के सामने, तो भी एक सभ्य व्यक्ति जो होगा ही हैज़ नेवर येट थॉट फिट टू डू इट, तो भी वो इस तरह का काम करने के लिए नहीं सोचेगा. ही विल नेवर थॉट दैट इट इज़ ए गुड एक्ट, इट इज़ ए प्रॉपर बिहेवियर. द यंग वुमेन अंडरस्टैंड दिस एज क्लियरली एज इफ इट वर पुट इन टू वर्ड्स. उसके एटीट्यूड से ही वो यंग वुमेन समझ जाएगी उतना ही स्पष्ट तरीके से जितना कि शब्दों में उस बात को कहा जाता है. But no reasonable young woman would think of making this the ground of a quarrel. लेकिन कोई भी समझदार औरत
इस बात को लेकर झगड़ा नहीं करेगी। जस्ट एज लिटिल राइट हैव अ मैरिड कपल टू टेल मी बाय स्पीचेस and looks that are scarce less plain than speeches that I am not the happy man, the lady's choice. It is enough that I know I am not. I do not want this perpetual reminding. और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक यंग मैन जो है वो किसी औरत से मिलकर उससे सामने ये फ्रेंकली नहीं कहेगा कि वो हैंडसम और रिच नहीं है और वो उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो औरत उसे समझ जाएगी उसके फेस को देखकर, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर। जिस तरह से उस मैन को कोई राइट नहीं है उस लेडी को कहने का, बिल्कुल उसी तरह से किसी मैरिड कपल को भी कोई अधिकार नहीं है टू टेल मी बाय स्पीचेस, टू टेल ए बैचलर बाय स्पीचेस और बाय लुक्स दैट आर स्केर्स लेस प्लेन देन स्पीचेस, जो कि स्पीचेस से कम प्लेन नहीं होते हैं। यानी वो लुक जो होता है उनका, उससे भी पता चल जाता है बैचलर को दैट ही इज़ नॉट द हैप्पी मैन, कि वो किसी लेडी की चॉइस नहीं है। इट इज़ इनफ दैट आई नो आई एम नॉट। लैम सेज दैट ही नोज दैट ही इज़ नॉट द प्रेफरेंस, he is not the part of this preference, he is not the lady's choice, but he says that I do not want this perpetual reminding, कि बार बार मुझे इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। He further says, the display of superior knowledge or riches may be made sufficiently mortifying, but these admit of a palliative. That people display their knowledge and their money, their riches, तो वो ये कह रहे हैं कि सुपीरियर नॉलेज का डिस्प्ले, दिखावा, या फिर पैसे का जो दिखावा है, दैट इज़ ऑल्सो मॉटिफाइंग, दैट इज़ ऑल्सो पेनफुल, बट दीज एडमिट ऑफ ए पैलेटिव, बट दीज डिस्प्लेस कैन बी एक्सक्यूज्ड। पैलेटिव मीन्स दे कैन बी एक्सक्यूज, इनको माफ़ किया जा सकता है। वाई? द नॉलेज विच इज़ ब्रॉट आउट टू इंसल्ट मी मे एक्सीडेंटली इम्प्रूव मी। अगर कोई नॉलेज का दिखावा कर रहा है तो वाई दैट पर्सन कैन बी एक्सक्यूज? बिकॉज लैम सेज दैट द नॉलेज विच इज़ ब्रॉट आउट टू इंसल्ट मी, कि वो नॉलेज, वो ज्ञान जो मुझे इंसल्ट करने के लिए मेरे सामने दिखाया गया, दैट मे एक्सीडेंटली इम्प्रूव मी, वो मुझे इम्प्रूव करेगा, उससे मुझे कुछ ज्ञान बढ़ेगा। एंड इन द रिच मैन्स हाउस एंड पिक्चर्स, हिज पार्क्स एंड गार्डन्स, आई हैव टेम्परेरी यूजफ्रक्ट एट लीस्ट। और अगर कोई रिचनेस का दिखावा कर रहा है, पैसे का दिखावा कर रहा है, तो एक रिच मैन के घर में, उसकी पिक्चर्स में, उसके पार्क या गार्डन में कम से कम एक टेम्परेरी इन्जॉयमेंट ज़रूर मिलेगा। बट द डिस्प्ले ऑफ मैरिड हैप्पीनेस हैज़ नन ऑफ दीज पैलिएटिव्स। लेकिन मैरिड हैप्पीनेस का जो दिखावा है, डिस्प्ले है, उसमें इस तरह के कोई एक्सक्यूजेस नहीं हैं। इट इज़ थ्रू आउट प्योर, अनरिकम्पेंस्ड, अनक्वालिफाइड इंसल्ट। ये एक तरह से कंप्लीट इंसल्ट है। सो ही सेज दैट इफ़ ए पर्सन इज़ showing his knowledge, if he is showing his money, that person can be excused. But if a person is showing the pleasures of his married life, that person cannot be excused. Marriage by its best title is a monopoly. Marriage का अगर बेस्ट टाइटल दें तो दैट इज़ ए मोनोपोली, कि ये एकाधिकार है। एंड नॉट ऑफ द लिस्ट इन विच वॉज शॉर्ट, और ये ज़्यादा दुर्भावना पैदा करने वाला नहीं है। इट इज़ द कनिंग ऑफ मोस्ट पोजेसर्स ऑफ एनी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू कीप देयर एडवांटेज एज मच आउट ऑफ sight as possible, that their less favored neighbors, seeing little of the benefit, may the less be disposed to question the right. ये कनिंगनेस होती है, क्लेवरनेस होती है ज़्यादातर पोजेसर्स की, कि उनके पास अगर कोई एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, कोई एक्सक्लूसिव कोई अच्छी चीज़ है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उनको अपने लेस फेवर्ड नेबर से दूर रखते हैं, उनकी साइड से अलग रखते हैं। सीइंग लिटिल ऑफ द बेनिफिट
मे द लेस बी डिस्पोज टू क्वेश्चन द राइट, कि कहीं उसका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा देकर उसके पड़ोसी जो है उस पर अपना अधिकार ना दिखा दे। बट these married monopolists thus the most obnoxious part of their patent into our faces। लेकिन जो मैरिड मोनोपोलिस्ट होते हैं, यानी अगर किसी और चीज़ की मोनोपोली है, एक कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे पड़ोसियों के पास नहीं है, एक व्यक्ति के पास है, तो वो उस चीज़ को का दिखावा नहीं करता है। लेकिन मैरिड मोनोपोलिस्ट जो होते हैं, they throw the most obnoxious part of their मोनोपोली कि सबसे अप्रिय हिस्सा जो है अपने इस अधिकार का, वो बैचलर पीपल जो है उनके सामने दिखाते हैं। He further says, nothing is to me more distasteful than that entire complacency and satisfaction which beam in the countenances of a new married couple, in that of the lady particularly। लैम सेज कि मुझे कोई भी बात इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती जितना कि ये देख कर लगता है दैट एंटायर कॉम्प्लिसेंसी, कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, एक पूर्ण आत्मसंतोष जो है वो इनके चेहरे पर, काउंटिनेंसेस मीन्स इनके फेसेस जो न्यू मैरिड कपल होता है उस पर झलकता है, और उसमें भी विशेष रूप से पर्टिकुलरली लेडी के चेहरे पर। इट टेल्स यू, ये आपको ये बताता है दैट हर लोट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन दिस वर्ल्ड, कि उसका भाग्य इस संसार में निर्धारित हो चुका है। दैट यू कैन हैव नो होप्स ऑफ हर, कि आप उसकी कोई आशा नहीं कर सकते। इट इज़ ट्रू, आई हैव नन नॉर विशेस आइदर, ये बात सच है और मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है परहैप्स, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रूथ which ought, as I said before, to be taken for granted, not expressed। लेकिन ये उन्हीं सच्चाइयों में से एक है जिनके बारे में हमें पता होता है तब वो बुरी नहीं लगती, बट when they are expressed then there is much offense in them, तब वो बुरी लगती है। The excessive airs which these people give themselves, कि बहुत ज़्यादा हाव भाव ये जो मैरिड पीपल अपने आप को देते हैं, फाउंडेड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ अस अनमैरिड पीपल, वो हम अनमैरिड पीपल की अज्ञानता पर आधारित है। वुड बी मोर ऑफेंसिव इफ दे वर लेस इरेशनल, एंड इट इज़ मोर ऑफेंसिव व्हेन दीज मैरिड पीपल वर लेस इरेशनल। वी विल अलाउ देम टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज बिलोंगिंग टू देयर ओन क्राफ्ट बेटर देन वी, हम उन्हें अलाउ कर देंगे कि अपने क्राफ्ट यानी मैरिड लाइफ की जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो रहस्य है, उनको वो हमसे बेटर समझते हैं। हु हैव नॉट हैड द हैप्पीनेस टू बी मेड फ्री ऑफ द कंपनी, बट देयर एरोगेंस इज़ नॉट कंटेंट विद इन दीज लिमिट्स। लेकिन मैरिड पीपल जो है उनका एरोगेंस, उनका अहंकार जो है इस लिमिट तक शांत नहीं होता, कंटेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, वो संतुष्ट नहीं होते। If a single person presume to offer his opinion in their presence, though upon the most indifferent subject, he is immediately silenced as an incompetent person। यदि एक सिंगल पर्सन उनकी प्रेजेंस में अपनी राय देता है, और चाहे वो मैरिड लाइफ के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ही हो, तो भी उसे तुरंत चुप करवा दिया जाता है एक असमर्थ व्यक्ति कहकर। Nay, यही नहीं, a young married lady of my acquaintance, here Lamb describes an example that a young married lady of his acquaintance, कि उसकी परिचित एक young married lady, who the best of the jest was had not changed her condition above a fortnight before in a question, कि उस लेडी ने अपनी कंडीशन, अपनी बात को चेंज नहीं किया एक प्रश्न के ऊपर, इन ए क्वेश्चन ऑन विच आई हैड द मिसफॉर्चून टू डिफर फ्रॉम हर, जिसमें राइटर का, लैम का दुर्भाग्य ये रहा कि उस प्रश्न पर इनकी राय जो है उससे अलग थी, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोप्रेस्ड मोड ऑफ ब्रीडिंग ऑयस्टर फॉर लंडन मार्केट, एंड दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द मोड ऑफ ब्रीडिंग ऑयस्टर्स फॉर द लंडन मार्केट,
कि लंदन मार्केट के लिए ऑयस्टर्स को कैसे ब्रीड किया जाए, उसका क्या प्रॉपर मोड है, क्या तरीका है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था। हैड द एश्योरेंस टू आस्क विद द स्नियर, उस लेडी में इतना एश्योरेंस था कि उसने व्यंग्य के साथ मुझसे पूछा, कहा, हाउ सच एन ओल्ड बैचलर एज आई कुड प्रिटेंड टू नो एनीथिंग अबाउट सच मैटर्स, कि मुझ जैसा एक बैचलर जो है वो इस तरह के मैटर्स के बारे में कुछ भी कैसे बता सकता है, कोई दावा कैसे कर सकता है।